Hello students, welcome to the next part of amines. Today we are going to learn the physical and chemical properties of amines. Physical properties of amines. So first is solubility. Lower aliphatic amines is soluble in water because they can form hydrogen bonding with water. अभी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ अगर करनी है तो हमारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए उसके लिए. Solubility decreases with increase in molar mass of amines due to increase in the size of hydrophobic group. हाइड्रोफोबिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा और इंक्रीज होगा तो फिर solubility डिक्रीज ही होगी. बिकॉज हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्या होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी जैसे आपको समझ में आ जाए. सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट. Among the isomeric amines, primary and secondary amines have high boiling point because they can form hydrogen bonding. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. सो प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. एंड सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन होता है और टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है. So this is the order of boiling point. Primary is greater than secondary and tertiary is less. Chemical properties of amines. So उसमें आते हैं basic character of amines, solvation effect, steric factor and last comparison of basic strength of aryl and aryl amines and alkyl amines. So first we will see the basic characters of amines. Amines have an unshared pair of electrons on nitrogen atom due to which they behaves as a Lewis base. As you can see, this is the unshared pair, that is lone pairs of nitrogen atom. अगर ये शेयर हो रहे तो ये डोनेट नहीं कर पाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये शेयर नहीं हो रहे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से डोनेट करेंगे, इसलिए हम इसे लेविस बेस बोल रहे हैं. सेकेंड, सॉल्वेशन इफेक्ट. सो in aqueous solution it is observed that tertiary amines are less basic than either primary and secondary amines. So this can be explained by these factors. So solvation effect में क्या है? Tertiary ammonium ion is less hydrated than secondary, which is less hydrated than primary amines. Hydrated मतलब उसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए हमारे मॉलिक्यूल में. तो जैसे मैंने बोला था कि टर्शियरी में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है बिकॉज 3 अल्काइल ग्रुप्स है और प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई सॉल्वेशन इफेक्ट. ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे होगा? Primary is greater than secondary and then tertiary. Third one is the steric effect. So as the crowding of alkyl group increases from primary to tertiary amine, hindrance to hydrogen bonding increases, which eventually decreases the basic strength. So steric factor में क्या आता है? क्राउडिंग आती है. क्राउडिंग मतलब भीड़ होती है. So alkyl group, जिस मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी स्टेरिक फैक्टर भी ज़्यादा होगी, मतलब हिंड्रेंस उसमें ज़्यादा होगा, भीड़ ज़्यादा होगी उसमें. सो उसका बेसिक स्ट्रेंथ वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा. सो टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ उसी का कम होगा ना. सो ऑर्डर ऑफ स्टेरिक फैक्टर क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Last, comparison of basic strength of aryl amines and alkyl amines. Aryl मतलब aromatic. Generally, aryl amines are less basic than alkyl amines. Taking an example of aniline and ethylamine, it is observed that ethylamine is more basic than aniline. ये हो गया aniline. ये क्यों ऐसा बोला है कि ethylamines more basic है aryl amines से? इसका रीजन देखते हैं. इन एनिलिन NH2 group is directly attached to benzene ring. As you can see, this is aniline and NH2 group is directly attached to the benzene ring. Hence, unshared pair of electron on nitrogen is less available for protonation because of resonance. अभी यहाँ पे जो लोन पेयर है इसके ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ से यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है. इसमें इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है बिकॉज ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं. इसीलिए बोला है कि अरिल अमीन्स ये लेस बेसिक है अल्काइल अमीन्स से. और अल्काइल अमीन्स में क्या होता है? ये अनशेयर्ड होते हैं
मतलब वहाँ पे रेजोनेंस तो होती ही नहीं है बिकॉज बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट नहीं होती है. दैट्स व्हाई. आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स अच्छे से समझ में आ गई होगी. और ये जो फैक्टर्स है ये तो कॉमन ही है, ये हमने अल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ा था. तो ये कॉमन ही है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या क्या होता है. दैट्स इट. लेट्स हैव अ लुक ऑन रिएक्शंस ऑफ अमीन्स. फर्स्ट वन इज द असाइलेशन रिएक्शन. सो जब भी आपको असाइलेशन रिएक्शन दिखेगा कहीं पे तो आपको ये याद में रखना है कि हमें एसिड क्लोराइड को यहाँ पे ऐड करना है. So aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chloride, anhydrides and ester to form substituted amines. The reaction is carried out in the presence of strong base which can remove the HCl. So यहाँ पे देखो ये है प्राइमरी अमीन्स, ठीक है. प्लस हमने क्या लिया, एसिड क्लोराइड लिया. तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से H निकालना है और यहाँ से Cl, मतलब क्या निकालना है, हमें HCl को बाहर निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, बिकॉज अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी ये अमीन से, प्राइमरी अमीन से, तो ही जाके यहाँ से HCl को हम बाहर निकाल सकते हैं. अगर लेस बेसिक होगी तो हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते. सो व्हाट वी गेट, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स प्लस HCl. हमारा HCl यहाँ पे बाहर निकल गया. तो यही होता है असाइलेशन रिएक्शन में. Second one is carbalamine reaction. On the aliphatic and aromatic primary amines, on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide, form isocyanates or carbalamines. So as you can see, this is primary amine plus हमने क्या लिया, chloroform CaCl3 plus 3 molecules of potassium hydroxide, मतलब ये हो गया ethanolic KOH. In the presence of base, we get isocyanates, मतलब carbalamines. आइसोसाइनेट्स को ही कार्बेलामाइंस कहते हैं. प्लस बाहर क्या निकला है, KCl. यहाँ पे HCl निकला था बिकॉज यहाँ पे H प्रेजेंट है. यहाँ पे हमने क्या डाला है, KOH. सो KCl प्लस वाटर निकला यहाँ पे बाहर. रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन्स. फर्स्ट वन इज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन में क्या होगा, हमें Br को ऐड करना है, ब्रोमीन को ऐड करना है, ठीक है. सो ये है एनिलीन, ये हो गया एनिलीन plus 3 molecules of Br2 in the presence of Br2 and water molecules. So we get 2,4,6 tribromoaniline. अब इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्यों बोला है ये देखते हैं. एनिलीन जैसा का वैसा है, ठीक है. इसमें हमें 3 Br2 को ऐड करना है. सो हमने यहाँ पे किया, ये यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया. तो यहाँ इसकी पोजीशन हम काउंट कर लेते हैं. एनिलीन है 1 पे, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 और ब्रोमीन किस पे, 2 4 एंड 6 पे, इसीलिए इसे 2 4 6 बोल रहे हैं. और 3 है इसीलिए इसको ट्राई बोल रहे हैं, ठीक है. तो उसका नेम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. प्लस बाहर क्या निकला है, 3 HBr, बिकॉज यहाँ पे H प्रेजेंट है ना, तो ये H को हमने रिप्लेस किया है किससे, Br से, इसलिए यहाँ पे 3 HBr बाहर निकले. सेकेंड वन इज नाइट्रेशन. सो नाइट्रेशन में तो हमें NO2 ग्रुप को ही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. सो दिस इज आवर एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, H2SO4 एंड 288 केल्विन टेम्परेचर. वी गेट 3 प्रोडक्ट्स. बस इसमें परसेंट दिए है, कितना प्रोडक्ट बनेगा ये उसके परसेंट्स है. सो यहाँ पे हमें मिला है पैरा नाइट्रोएनिलीन. पैरा क्यों, ये यहाँ पे इसलिए ये पोजीशन ये वाली पैरा है, ये है मेटा और यहाँ पे जो है वो ऑर्थो है, ठीक है. सो हमें मिल रहे प्रोडक्ट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर अमीन्स. सो इसमें हमने देखा था अमीन्स के बारे में थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद हमने प्रिपरेशंस ऑफ अमीन्स देखी, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए एंड देन लास्ट हो गया रिएक्शंस ऑफ अमीन्स. सो आई थिंक क्विक रिविजन नोट्स के लिए ये काफ़ी है. दिस इज सफिशिएंट फॉर क्विक रिविजन नोट्स. सो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं. थैंक यू.